So basically we were doing the atomic structure, right? A few more things are left, and very important thing which is left is called as a atomic collision. Very important. अब जब आप पेस के टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको बार बार ये एटॉमिक कॉलिजन के क्वेश्चन आएंगे. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, पर आप ठीक से नहीं पढ़ते हो इसलिए आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते. कॉलिजन बेसिकली आपने जो अभी तक पढ़ा है, तो दैट वाज द कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज, राइट? देयर वाज द टू बॉडीज और टू पार्टिकल्स, आपने इसका कॉलिजन पढ़ा था. और आप बॉडी लेते हैं, देयर आर इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम, राइट? Over here, a particle is going to be collided with the atom. Okay, ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे. तो हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिकली वो हेड ऑन कॉलिजन पढ़ेंगे. तो मैं एक एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ. तो मैं लिखूंगा हेड ऑन कॉलिजन ऑफ न्यूट्रॉन विद हाइड्रोजन एटम. यहाँ हाइड्रोजन एटम की जगह पे मैं कुछ और भी रख सकता हूँ ना, हीलियम आयन रख सकता हूँ, एक्सेट्रा. आई कैन चेंज ओवर हियर. ठीक है, और यहाँ पे भी पार्टिकल को मैं चेंज कर सकता हूँ. न्यूट्रॉन की जगह अल्फा पार्टिकल लिख सकता हूँ, एक्सेट्रा. ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी सेम. सपोज देयर इज अ न्यूट्रॉन एंड इट इज गोइंग टू बी कोलाइडेड विद द हाइड्रोजन एटम. तो ये सपोज मैंने न्यूट्रॉन लिख दिया, ये हाइड्रोजन एटम ले लिया. हाइड्रोजन एटम, आई गेस बोथ हैव द ऑलमोस्ट सिमिलर मास, राइट? ये न्यूट्रॉन है हमारा और ये हाइड्रोजन एटम है. बोथ हैव द सिमिलर मास. लेट इट्स मास इज m. तो मैं इसको भी मास अप्रोक्सीमेटली m ले सकता हूँ, राइट? ओके, सो आई एम गिविंग यू द पर्टिकुलर केस, राइट? सपोज न्यूट्रॉन की वेलोसिटी v है और ये रेस्ट पे था. अब ये दोनों आपस में कोलाइड करने वाले हैं. So obviously there can be three types of collision. One is the perfectly elastic, perfectly inelastic, okay, and partial elastic or inelastic collision. So first of all, I will talk about the perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. If you know that maximum loss of energy happens in the perfectly inelastic collision. So out of those three, perfectly elastic, perfectly inelastic, and partially inelastic or elastic collision, the maximum loss of kinetic energy of system इसी में होता है. Are you okay with this? पहले ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं. Yeah, obviously we are dealing with the Bohr's atomic model only. So any atom we will take, this should have one electron only. Otherwise, the energy formula जो आप पढ़ते थे, that is not valid for multi-electron system. चलिए. So basically, you know that if ये perfectly inelastic collision करने वाला है, isn't it? दोनों आपस में चिपक जाएगा और दोनों की common velocity v naught हो जाएगी. If you know this, right? आपने बॉडी का पढ़ा हुआ है, ऐसा ही हो जाता है perfectly elastic collision में, inelastic collision, sorry. So let इसको मैं v naught लिख देता हूँ, let इसको v रख देता हूँ, ठीक है? Yes. Move to the next page. It is not okay.
Now, so what is the loss of kinetic energy? आप angular momentum, sorry, linear momentum conservation लगा सकते हैं. We will use conservation of linear momentum. So you can understand that this concept is conservation of linear momentum is valid at atomic level also, right? Likewise, the conservation of angular momentum is also valid till atomic level. Okay. So initial जो energy थी, linear momentum था, वो mv था, mv naught था, और final जो है 2 mv है. So from here we have got v is equal to v naught by 2. Okay. Initial kinetic energy of system was half m v naught square. Final kinetic energy of system is half m is 2m or velocity ka square 2. So m v square. So m v naught square by 4, right? So ऐसे मैंने kinetic energy k naught लिखा. So can I write it is the k naught by 2, right? So what is the loss of kinetic energy of system? So you will say that it is k naught by 2. Are you okay till now? Isn't it a maximum loss of kinetic energy, which is possible? Okay. K naught by 2. वैसे ही मैं perfectly elastic collision कहता, elastic collision कहता, तो आपसे पूछता what is the loss of kinetic energy of system? You would say this is 0. और मैं partial elastic या inelastic कहता, partial inelastic collision. So आप कहते loss of kinetic energy will be greater than 0 of system and less than k naught by 2. Are you okay with all the 3 lines? चलिए लिखिए. अच्छा ये जो k naught by 2 आया वो specific example के कारण है. इसको याद नहीं करना होगा कि k naught by 2 होगा, right? चलिए फटाफट लिख लीजिए इसे. अब angular momentum is the very complicated thing in case of atomic level पे, है ना? आपने इसका orbital angular momentum होता है, spin angular momentum होता है. That's a very complicated topic, which we are not going to handle over here, right? And basically the atom in that sense is guided by the quantum physics. And we are studying the classical physics, right? So we should know that that is applicable, but we will ignore that.
हो गया? आर यू डन? और 3-4 लाइन तो है लिखने के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now the loss of kinetic energy, very important line I am going to write now. Note. Loss of kinetic energy of system. ये किस में होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? या तो परफेक्टली इनइलास्टिक में होता है और पार्शियल इनइलास्टिक में होता है। Loss of kinetic energy of system can happen only if it can cause excitation or ionization of hydrogen atom electron. Like लिख लीजिए। अब एक चीज याद कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन एटम के बारे में। जो फर्स्ट ऑर्बिट होती थी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, इसमें जो एनर्जी टोटल एनर्जी होती थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी। n=2 के लिए जो एनर्जी होती थी वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी। एंड n=3 के लिए एनर्जी जो होती थी वो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी। एंड n इंफिनिटी के लिए एनर्जी जो होती थी वो 0 होती थी। राइट, ऐसा। ऑब्वियसली जंप करेगा तो इन दोनों के बीच यहां से यहां इफ एक्साइट होगा तो कितनी एनर्जी चाहिए इससे? आप कहेंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। और ग्राउंड स्टेट से यहां जाना चाहे तो कितनी एनर्जी चाहिए इसको? कितनी एनर्जी चाहिए? तो आप दोनों को माइनस कर लेंगे, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। और इन्फिनिटी तक जाए, ऐसे हर एक ऑर्बिट का निकाल सकते थे। तो कितनी एनर्जी चाहिए? तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इतना लिखिए और फिर हम लोग इस पे काम करते हैं थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे हीट लॉस वॉस नहीं होगा ना? ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का लॉस हो रहा है दैट विल कॉज इधर एक्साइटेशन और आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन। राइट, ये बॉडी की तरह यहाँ पे ऐसे हीट लॉस नहीं लिखते हैं हम लोग। चलिए, I will go to the question part. Suppose मैंने कैलकुलेशन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम का किया है, इसलिए मैं वो वाला यूज करूंगा। okay.
हो गया, लिख के आगे बढ़े। द फर्स्ट पेज, ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। So now I will give you some example, very simple example. Suppose मैंने आपको दिया कि ये न्यूट्रॉन है और ये वेलोसिटी v से आ रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम था, एवरीथिंग इज गिवन कि हेड ऑन कॉलिजन होने वाला है। मैंने काइनेटिक एनर्जी, और ये रेस्ट पे है, इसलिए मैंने रेस्ट पे दिया। इसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज मैंने कह दी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और मैंने पूछा आपसे विच टाइप ऑफ कॉलिजन इज पॉसिबल, इन दोनों के बीच में कौन सा कॉलिजन पॉसिबल है, राइट, क्लियर। अब आप बताइए इसका कि क्या परफेक्टली इलास्टिक पॉसिबल है। पहले सोचिए परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, नो। परफेक्टली इनइलास्टिक इज नॉट पॉसिबल। मेजॉरिटी ऑफ लोग, आप लोग कह रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक इज नॉट पॉसिबल, राइट, and only one student has said कि perfectly inelastic possible है, Dhwani, okay. Can you explain, Dhwani, how you are telling me that this perfectly inelastic origin is possible? Can you explain? Yeah, there were two. Now Saumil is telling me that perfectly inelastic possible है, okay. How? But how? Okay, Vedant is also telling me perfectly elastic होगा, and now several students are telling that perfectly elastic possible है। देखो, परफेक्टली इलास्टिक पॉसिबल होने के लिए यहाँ पे समझिए कि मुझे या वेरी गुड, हाँ देखिए परफेक्टली इलास्टिक, ये सेम मैंने ले लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम वाला केस ले लिया, यानी पहले वाली कैलकुलेशन मेरा वैलिड होगा, राइट। सो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होने के लिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए थी सिस्टम की, जो भी काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन का था अपॉन 2, राइट। सो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लॉस होनी चाहिए थी। क्या ये लॉस ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉसिबल है इस केस में? यस, या ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है यहाँ से, राइट, है ना, और फिर लॉस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, राइट। सो वी विल से दैट यस दिस लॉस ऑफ एनर्जी is possible in this case, so perfectly inelastic collision will happen, right, can happen, right. So we can say that perfectly inelastic collision is possible. A पार्ट लिख लिया मैंने, B पार्ट, क्या परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हो सकता है क्या, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन? इट इज ऑलवेज यस, यस, है ना, यहाँ पे एनर्जी लॉस का तो टेंशन ही नहीं है, राइट, तो ऑब्वियसली हो सकता है, ओके। अच्छा एक और बात, इसी को मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करता जाता हूँ, राइट, राइट। सपोज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इनिशियल तो ये दिया हुआ है, फाइनल क्या हो जाता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम आपस में चिपक जाता और दोनों की वेलोसिटी जो होती है वो v0 होती, राइट, सिंपल, राइट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होगी, नाइट्रोजन एटम की एनर्जी क्या होगी, राइट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर कॉलिजन, कैन यू सॉल्व दिस? ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व दिस, राइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन में बोला, सॉरी न्यूट्रॉन आफ्टर कॉलिजन क्या होनी चाहिए, बताइए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखो इसका जो हाफ है लॉस हो गया था और आधा आधा बट गया था, isn't it, can I write ये 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा,
Are you okay with this 5.2 electron volt calculation? हाँ 5.1 सॉरी 5.1 है ना. देखो 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आधा तो लॉस हो गया, तो सिस्टम के पास कितनी एनर्जी पड़ी चाहिए 10.2. इधर दोनों का मास बराबर बराबर है और वेलोसिटी भी सेम है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, राइट. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी, तो आधा बचा तो उसका आधा नाइट्रोजन सॉरी न्यूट्रॉन के पास रहेगा, आधा काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम के पास. ऐसे पूछा जा सकता था काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, तो आप कहेंगे 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. ओके. एंड आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली यहाँ पे एक्साइटेशन हुआ है, थोड़े समय के बाद क्या होगा, डी एक्साइटेशन होगा, वापस भी तो आएगा, तो यहाँ पे एक फोटोन बाहर आएगा और पूछा जाएगा फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन. आप कहते हैं सर यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी वो कितनी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आर यू ओके विद ऑल द कैलकुलेशंस? चलिए इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग वी विल गो टू द बी पार्ट. यस, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. Now we will think about the partial inelastic collision. Let P point. आपसे पूछा जाएगा पार्शियल इनइलास्टिक कॉलिजन हो सकता है क्या इस केस में? सन पॉसिबल है? Answer is no. Yeah. Very good. No, it is not possible. हम लोग लिख सकते थे very simple for partial inelastic collision in this case है ना, loss of kinetic energy of system should be greater than 0 but less than how much, the half of that, means half of that was 10.2 electron volt. क्या ये loss of kinetic energy system possible है क्या? नहीं ना, because इससे कम का लॉस करेगा तो एक्साइटेशन तो पॉसिबल ही नहीं होगा. सो obviously it is not possible. This loss of kinetic energy of system is not possible. Okay, as this won't cause excitation or ionization of hydrogen atom. Okay,
So partial inelastic collision in this case is not possible. Collision is not possible. चलिए नेक्स्ट, इफ लिख लिया है तो सिर्फ ये बताइए, क्या परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन पॉसिबल है क्या? यस, इट इज पॉसिबल इन एवरी केस. ओके, इसमें तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, है ना, तो एक्साइटेशन तो होगा नहीं. यस, ऑलवेज. अब देखिए यहाँ पे तो ये कॉलिजन हो गया, फिर इसको समझना पड़ेगा कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है तो क्या होने वाला है. पहले इतना लिख लीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हुआ. इफ यू रिमेम्बर, ये मेरा न्यूट्रॉन है जो कि v स्पीड से जा रही थी. इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ तो मैंने कितनी ली थी, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और मेरा हाइड्रोजन एटम जो था, H एटम, स्टैटिक था या रेस्ट पे था. आफ्टर कॉलिजन डू यू नो दैट क्या होने वाला है? सेम मास है, इसका मास m है तो इसकी भी मास m है. तो आपको न्यूट्रॉन जो होगा रेस्ट पे आ जाएगा, है ना, एंड हाइड्रोजन एटम जो होगा वो v वेलोसिटी से इधर जाने लगेगा. इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी अब 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी. राइट, वेरी सिंपल. सेम मास का इफ हेड ऑन कॉलिजन होता था, राइट, इन इलास्टिक कॉलिजन दे यूज्ड टू एक्सचेंज देयर वेलोसिटी. वेरी सिंपल रिजल्ट. एंड हाइड्रोजन एटम का नो एक्साइटेशन, राइट, नो एक्साइटेशन. यहाँ पे कोई एक्साइटेशन नहीं हुआ. यहाँ पे हो गया. आगे बढ़े. I will take another example. You try to solve this example. मैं जानबूझ के कैलकुलेशन नहीं कराना चाहता हूं, तो मैं वही न्यूट्रॉन वाला ही केस लूंगा. न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एटम, इसको मैं रेस्ट पे कर लेता हूं. सपोज इसकी वेलोसिटी इधर है, हेड ऑन कॉलिजन होने वाला है. इसकी काइनेटिक एनर्जी अब मैं लिख लेता हूं कि थी 24.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट, इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है. ओके, आफ्टर कॉलिजन कुछ हो सकता है. फर्स्ट आपको बताना है perfectly in elastic collision is it possible? No. फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थी -13.6, सेकेंड की थी 3.4,
-3.4 एंड थर्ड की थी -1.5। इन दोनों का जो डिफरेंस था 12.1 था। तो चलो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसको, ठीक है, इसको 24.2 कर लेता हूँ। चलो अब बताइए। नाउ पॉसिबल, वेरी गुड। मतलब दोनों समझ में आ गया आपको कि मैं नंबर चेंज करता जाऊंगा, आप अपने आप आंसर कर सकते हैं। यस, आप कहेंगे यस यस इट इज पॉसिबल। अच्छा, इफ पॉसिबल है तो क्या होने वाला है? आप जानते हैं इनिशियल जो है ये न्यूट्रॉन था, इसकी काइनेटिक एनर्जी 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ये मेरा हाइड्रोजन एटम था, रेस्ट पे भी था और ग्राउंड स्टेट में भी था, ग्राउंड स्टेट में भी था। ये बिफोर कॉलिजन की बात है। बाद में कॉलिजन में दोनों चिपक जाएंगे, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती भी है ना। ये इफ वी नॉट से जा रही थी तो ये भी हो जाती। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगी ऑफ सिस्टम is equal to 12.1 electron volt. Obviously it is possible. So electron of hydrogen atom will move to n is equal to 3 from n is equal to 1, right? ये हो जाएगा सिंपल। अब 12.1 खर्च कर दिया, बचा क्या? 12.1 ही बचा। अब दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों का मास mm ही होता है, तो हाफ हाफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब कहेंगे आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितनी हो गई इस केस में? तो आप कहेंगे 12.1 का आधा, 12.1 by 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलेंगे, आप कहेंगे 12.1 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। वेरी गुड। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया। और फिर ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम जो है n इज इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन इफ n इज इक्वल टू 3 में गया है तो वो ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, वापस आएगा और यहाँ से आपको एक फोटोन भी बाहर मिलेगा, ठीक है। और उस फोटोन की एनर्जी आपको लिखनी होती है तो आप 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। अच्छा, एक ही फोटोन नहीं आएगा, उसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में भी आ सकता है, n इज इक्वल टू 1 में भी आ सकता है, दैट थिंग। तो वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ भी एक फोटोन मिल सकता है और यहाँ से यहाँ आएगा तो एक फोटोन। मींस 3 टाइप्स ऑफ फोटोन यू विल गेट फ्रॉम। चल, ये जो मैंने गंदा किया है इसको थोड़ा मैं साइड में बना देता हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आए। हाँ, वो मैं अभी करूंगा। 24.8 होता तो पार्शियल इनइलास्टिक पॉसिबल था। तो अभी मैंने कहा था, देखो ये एक्चुअली ऐसे समझिए, n इज इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके n इज इक्वल टू 3 में आ गया था। अब यहाँ से कौन कौन सा पॉसिबल है? एक तो फोटोन पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ आ जाए, आपको एक फोटोन यहाँ से मिलेगा और उस फोटोन की एनर्जी जो होगी कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये था -1.5 और इसकी एनर्जी थी -13.6।
और इसकी जो एनर्जी होती थी -3.4, राइट। तो ये वाला जो एनर्जी होता है इनका डिफरेंस होता है, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती। अब ये 3 से हो सकता है 3 से 2 में आया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो फोटोन होता है ईपी, इसकी एनर्जी होती है इसका डिफरेंस। आप कहते हैं 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी फोटोन मिल सकता है मुझे, और एक यहाँ से 2 के बाद 1 में भी आ सकता था, ये वाला भी फोटोन आपको मिल सकता था, इन दोनों का डिफरेंस, राइट। तो ये जाती 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके इमिशन स्पेक्ट्रम में आपको कितने आपको फोटोन दिखती? देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ फोटॉन्स। 3 types of photons can be seen after emission. चलिए लिख लीजिए इसे। देन आगे बढ़े। मूव नाउ। अभी इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा सेकंड पार्ट, बी पार्ट, क्या पार्शियल इनएलास्टिक कॉलिजन is it possible in this case? Answer is yes, yes possible है। क्यों? अब जानते हैं फॉर partial inelastic collision, kinetic energy loss of kinetic energy of system should be greater than 0 and less than जो उसका हाफ था। कितनी थी मैंने ली थी, कितनी ली थी ऊपर? 24.2 लिया था, मींस 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग याद करो, अभी फिर से बना लेते हैं। n is equal to 1, n is equal to 3, n is equal to 2। तो 1 and 3 से इजंट इट 1 से इफ 2 चला जाए तो कितना एनर्जी ये चाहिए इसे? तो आप कहोगे सर इसके लिए तो -13.6 था, -3.4 था, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर ले तो चलेगा। ठीक है, राइट। और ये पॉसिबल है, हाँ इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, राइट। सो ऑब्वियसली वी कैन से दैट इट इज पॉसिबल, राइट। सो इट इज पॉसिबल। सो इफ पॉसिबल है, राइट, इफ ये पॉसिबल है तो क्या होगा, राइट। तो आप देखेंगे बिफोर कॉलिजन ये न्यूट्रॉन था, ये हाइड्रोजन एटम थी और ये इधर जा रहा था। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो मैंने ली थी वो ली थी डबल 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली थी, ये रेस्ट पे था। अभी आफ्टर कॉलिजन क्या होने वाला है? ये न्यूट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम है, राइट। हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में था, यहाँ पे किस स्टेट में जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज एट n is equal to 2 में, है ना। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी समझिए आप इसमें। इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना मुश्किल होगा, राइट, बिकॉज यू डोंट नो कि क्या होने वाला, राइट। दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस केस, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ। तो आप समझिए 10.2 तो चली गई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? आप कहते हैं सर टोटल जो एनर्जी आपने ली थी 24.2 ली थी, उसमें से 10.2 तो गया सर। आप कहते हैं 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची है सिस्टम के पास, राइट। ऑब्वियसली ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कॉलिजन क्या है? आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट, ये कह सकते हैं आप। अब आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होने वाला ही है, तो वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या था, mv था, सपोज इसकी वेलोसिटी v ले ली, और फाइनल लीनियर मोमेंटम सपोज इसकी v1 होती, इसका v2 होता, राइट, तो आप लिखते m v1 प्लस v2 होता, राइट। सो यहाँ से इक्वेशन 1 निकल जाता मेरा, राइट, ओके। और हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन लिखना होता तो मैं क्या लिखता फाइनली, हाफ m v1 स्क्वायर, और उससे लगता हाफ m v2 स्क्वायर, and that would be equal to 14 electron volt, right? This would be my second equation. You can see that we have the two unknowns and two equations. V is known to us, right? यहाँ से V आ जाता ना, काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो आप V निकाल लेते उसकी, right? So यहाँ पे आप V1 and V2 यहाँ से निकाल सकता था। Are you okay with the discussion? समझ में आया? Just write down everything. चलिए हो गया। No. Yeah. So let's move to the my third part, C part. In C part, I will ask you perfectly elastic collision. Will you observe the? Can you observe? Is it possible to have a perfectly elastic collision? Yeah, obviously yes. Obviously yes. It is always possible. Okay. So suppose if perfectly elastic collision होता है तो क्या होगा? ये थी इसकी स्पीड v थी और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा था मैंने, 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो एंड हाइड्रोजन एटम वाज एट रेस्ट एंड ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन थे। एंड आफ्टर कॉलिजन, इफ इलास्टिक कॉलिजन है तो दोनों की मास सेम है, दे विल एक्सचेंज देयर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इफ यू रिमेंबर। तो ये अब रेस्ट पे आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन एटम था ये ग्राउंड स्टेट में ही होगा, बट इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, स्पीड v इधर आ जाता और इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी हो जाती 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलिए लिख लीजिए।
I hope it is done, right? Just move. अब मान लो इसी पे मैं लिख देता हूँ, अब you know the concept. इसी की जगह मैंने लिखा होता collision of neutron with a helium ion, right? तो सेम चीज आप न्यूट्रॉन ले लेते, न्यूट्रॉन लिया, इसकी मास आप लिख लेते m है, सपोज इसको मैंने स्पीड v नॉट दे दिया होता और लेट काइनेटिक एनर्जी इसकी k नॉट है और हीलियम आयन जो है यहाँ पे रेस्ट पे है, राइट? इसका मास क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा, राइट? इफ दैट इज m देन मास ऑफ दिस विल बी 4m, राइट? बस ग्रेट, इस मास विल बी 4m। मैंने ग्राउंड स्टेट में लिया, मैं कहीं भी ले सकता हूँ, आप इतना तो आप समझ में आ गया होगा। आफ्टर कॉलिजन समथिंग विल हैपन, ओके? तो आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस का कंडीशन निकाल लोगे, राइट? सेम प्रोसेस, कैन आई राइट सेम प्रोसेस एंड कैन आई मूव टू अनदर थिंग, राइट? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का हाफ का लॉस होगा ऐसा नहीं है ना, यू हैव टू कैलकुलेट, ओके? चलिए ये आप कर लोगे, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन सब सॉल्व करोगे तो आपको ये सब कंडीशन दिखेंगे, ओके? सो यू विल डू दैट। Now we will move to the another thing, recoil speed of atom after de-excitation. So समझिए अभी तक मैंने इस पार्ट को इग्नोर करके रखा था हमेशा ही, बट इसको छोटे से कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। सपोज आई हैव हाइड्रोजन एटम और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड स्टेट पे है, n इज इक्वल टू में, मीन्स एक्साइटेड है, राइट? अभी ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन एटम सपोज ग्राउंड स्टेट पे आ गया, इलेक्ट्रॉन, राइट? ग्राउंड स्टेट पे आ गया, तो इजंट इट यहाँ पे एक फोटोन बाहर आया होगा? आर यू ओके विद दिस, राइट? फोटोन विल कम आउट, सो फोटोन की एनर्जी आप निकाल पाते थे, राइट? तो फोटोन की एनर्जी निकालने से पहले समझिए कि isn't it excited state से जो ये आया है, there is no external force, F external is 0, so should I use the conservation of linear momentum of system? Right now I should use the conservation of linear momentum over here. let मान लेते हैं फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी लीनियर मोमेंटम अभी क्या हो जाती है, याद है? इसकी एनर्जी, सपोज एनर्जी मैंने लिख दिया था sc by lambda, राइट? एनर्जी ऑफ फोटोन, तो isn't it इसकी लीनियर मोमेंटम क्या होती थी बताइए, कैन यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर? h by lambda होती थी, राइट? h by lambda होती थी, राइट? सो आप कहते हैं सर जो भी एनर्जी होगी ep अपॉन लैम्डा, ep अपॉन c हो जाएगी इसकी लीनियर मोमेंटम। इफ इसकी लीनियर मोमेंटम राइट में है, इसकी राइट में, isn't it इसका लेफ्ट में होगा, सभी कंजर्व हो पाएगा। इफ वो राइट में है तो वो लेफ्ट में होगा, है ना? ये रुको, मैं यहाँ पे pf की जगह p ऑफ फोटोन लिख देता हूँ और मैं इसे p ऑफ h एटम लिखता हूँ, ये राइट में होता, इसकी लीनियर मोमेंटम कितनी होती? तो ep by c होती। आर यू ओके विद दिस? यस, अब ध्यान से समझिए आप इसको। तो हाइड्रोजन एटम के पास जो ये लीनियर मोमेंटम है, इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके पास होती। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं आप? लीनियर मोमेंटम पता है, ph² अपॉन 2m। ओके, सी सपोज देयर इज अ हाइड्रोजन एटम व्हिच इज इन अ एक्साइटेड स्टेट, लेट मैंने n इज इक्वल टू 2 ले लिया, राइट? और ये डी एक्साइटेशन हो रहा है, हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 में आ जा रहा है। ऑब्वियसली 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा, so obviously it will release one photon, right? I am 100% sure. So if photon is released, obviously photon has some energy. Let its energy is EP. Its energy is EP. So EP will be sc by lambda. Whatever energy it has, it will be sc by lambda. Isn't it? Linear momentum of photon will be h by lambda. So we can say that whatever is the energy upon c, आप कह देंगे, that would be it's a linear momentum. Obviously इसकी linear momentum right में होगी तो इसकी linear momentum left में होनी चाहिए, because we know that on the system during the de-excitation there is no external force, so linear momentum must be conserved. So linear momentum of this hydrogen atom, if it is in the right direction, so it will be in the left direction, opposite,
So what will be the magnitude of linear momentum of this? It will be EP by C, right? Okay. Simple. Yeah. So obviously it has a linear momentum. So obviously its energy will be in the form of kinetic energy. So its kinetic energy will be pH squared by 2m, right? And its energy is EP. Its energy is EP. Okay. So its energy is EP. So can I write? Think over here. अच्छा, इसकी एनर्जी लिखनी होती तो पीएच और पीपी तो एक ही है, जिसको पीपी लिख तो पी ही रहने देता हूँ, राइट? तो हम लोग आगे चल के कंफ्यूज नहीं होंगे, तो मैं इसको भी पी ही लिख देता हूँ, सिंपल है ना? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अच्छा, इसकी ईपी लिखना होता तो लीनियर मोमेंटम के टर्म में लिखता, वेट, इसको पीएच लिख दिया मैंने, पी लिखा है। तो इसकी एनर्जी लिखना होता, मान लो लेमडा के टर्म में लिखना होता, तो या पी के टर्म में लिखना होता, तो मैं क्या लिखता? ईपी विल बी पी इनटू सी, राइट? आर यू ओके विद दिस एंड दिस? नाउ थिंक 2 से 1 में जो एनर्जी आई है, 2 से 1 में जब एनर्जी आई, वो कितनी एनर्जी आई होगी बताइए? व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट टू द सिस्टम? 10.2 electron volt. Yes, isn't it? 10.2 electron volt over here is p square by 2m plus pc. Yes. आगे लास्ट हम लोग अभी तक क्या मानते थे? ये जो एनर्जी होती थी वो किसके पास जाती थी? पूरी की पूरी फोटोन के पास जाती थी. Is it actually going to the photon? No, right? इफ ये फोटोन के पास सारी एनर्जी जाएगी तो फोटोन के पास एनर्जी के साथ साथ उसके पास मोमेंटम भी आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम भी आ जाएगा. इफ उसके पास लीनियर मोमेंटम है और हाइड्रोजन स्टैटिक है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, एंड विच इज द बेसिक थ्योरम, राइट? आप उस प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर सकते. सो बेसिकली हम लोग आगे पीछे तक जब भी कर रहे थे तो यहाँ पे समझेंगे वो जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी, दैट वुड बी शेयर्ड विद द एटम, हाइड्रोजन एटम एज वेल एज द फोटोन. Are you okay with this till now? Okay, चलिए इतना लिखिए, पहले इसको समझते हैं फिर आगे और बढ़ते हैं. Now there is one approximation. This is the realistic situation. You can find out the p, है ना? यहाँ से आप accurately calculate कर सकते हो, right? We can get the p from here. Mass of hydrogen से divide करेंगे, p आ जाएगा, right? If you have the p, isn't it? You have the linear momentum hydrogen atom, right? So आप recoil speed में इसकी speed क्या होगी? Recoil speed of h atom आपको लिखना होता तो आप क्या लिखते? जो भी linear momentum है upon mass. Are you okay with this?
आप accurately, okay, someone has raised the hand. No, nobody. I can't see. Someone has raised the hand. Yes, no, no. Wait. Okay. So accurately आप P निकाल सकते हो? Yes, someone has again raised the hand. No. Wait. चलो यहाँ आते हैं हम लोग. Okay, no problem. He might have understood the thing. चलो यहाँ आते हैं. So can you find out the P accurately? Yes, you can find out the P accurately from here, right? So obviously you can find out the required speed of hydrogen atom also accurately. चलो पहले ये लिख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं. फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन तो वैलिड है ही, हम लोग अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं लोग. Now we'll move to the some approximation thing. तो मैं लिख देता हूँ I am doing some approximation and that approximation is almost valid. नोटेशंस में है तो ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आई कैन डू द अप्रोक्सीमेशन. अच्छा ये 10.2 क्या था? वो डेल्टा ई लिख दूं, मींस हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट जो है वो डेल्टा ई था. अब मैं अप्रोक्सीमेशन करता हूँ. अब now understand, if you do calculation, p square by 2m is going to be very less than pc if you do the calculation. Okay, if you do the calculation, p square by 2m will be very less than pc. Means what? Energy of photon is very p dominating as compared to the energy of hydrogen atom. Okay, so over here can I write that delta E जो भी था वो ये वाला energy level का जो है that will be approximately equal to pc. So from here can I find out what is the p? P will be delta E by c. It is approximate result. Okay, so isn't it this p is the linear momentum of hydrogen atom also? So मैं कह सकता हूँ required speed of hydrogen atom is equal to p by m. M is the mass of the hydrogen atom, so delta E by m into c. Okay, so this would work well for me. Okay, तो इससे मेरा काम तो चल ही जाएगा, लिख लीजिए. But this is the approximate result. डन, आगे बढ़े हम लोग. चलो we'll move. Further, I will explain one concept with the example of one question. Okay, मैं question के through ही आपको ये समझा देता हूँ इस concept को. Suppose potential energy of the system atom structure में given है k log r, ये आपको given है. Okay, where k is some constant, positive constant में लिखता हूँ, some positive constant. आपसे पूछा find radius and energy level of nth orbit. मैंने पोटेंशियल एनर्जी अपनी मर्जी से लिख दिया कि भाई ये फंक्शन काम कर रहा है. इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सम इमेजिनरी स्टफ, राइट? रियली में ऐसा नहीं होता है ना.
आई एम टॉकिंग अबाउट सम इमेजिनरी एटम. ओके, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इफ यू रिमेंबर फ्रॉम हियर u इज इक्वल टू k log r से आप यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे फोर्स कैन बी रिटन एज du by dr, राइट? कैन आई राइट दिस? एंड वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है mv स्क्वायर बाय r है, right? मैं ये कह रहा हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है दैट इज दिस फंक्शन. ओके, तो फोर्स तो mv स्क्वायर बाय r ले लिया और du by dr आप कर सकते हैं. व्हाट इट विल बी? Isn't it? This will be k by r. Right? K by r आ गया. तो यहां से मुझे पहला इक्वेशन मिलेगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू k. This is my first equation. R represent the radius. Okay. First equation. दूसरा इक्वेशन में कहां से आता था याद है? mvr is equal to nh by 2 pi. Right? This is my second equation. अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे r निकालना. ऑब्वियसली आई कैन फाइंड आउट द r. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, राइट? क्या कर सकते हो? यहां से v लाके यहां रख दो, राइट? तो आपका सॉल्व हो जाएगा. या यहां से v लाके वहां रख दो तो भी सॉल्व हो जाएगा. कैन यू फाइंड आउट r फ्रॉम हियर? इन दोनों से मुझे r की वैल्यू आ जाएगी. ओके, सो सपोज मैंने r को सॉल्व करना स्टार्ट किया. मैं सॉल्व कर किया हुआ मैं इसे लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ. इस दोनों को सॉल्व करते तो ये आ रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k रेज्ड पावर हाफ. ये था हमारा आंसर. राइट, सिंपल है. आपने सही लिखा था. जिसने भी अभी लिखा था आपने वही लिखा था. जो v नहीं चाहिए ना मुझे. v के टर्म में नहीं चाहिए, राइट? मुझे बाकी कांस्टेंट के टर्म में चाहिए. तो आई विल रिप्लेस द v, राइट? आर यू ओके विद दिस? So this is my first answer for this question. They might give you some another function for you, so you can solve like this. अच्छा, फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड लगा सकते हैं. एक्चुअली माइनस du by dr होता है ना. आप सिर्फ मॉड लगा के काम चलाइए, राइट? चलिए अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या लिखते हैं? हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर. देखो mv स्क्वायर k है तो हाफ mv स्क्वायर क्या होगा? k by 2. ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली k log of r है ना. ये r की वैल्यू पुट कर सकते हो और कुछ कुछ निकल जाएगा आपको, है ना? आप कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन की ऑप्शन क्या दिया हुआ है. ऑलरेडी ये तो पता ही है मुझे. सपोज r इन्होंने ये निकाला है तो ये रख सकता है. और आपसे पूछा जाता है टोटल एनर्जी क्या होगी तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दैट वुड बी माय आंसर. दिस विल बी माय नेक्स्ट आंसर. सिंपल. तो मेन पार्ट ये था कि पोटेंशियल एनर्जी between electron and nucleus can be given any other function. From there you will find out the force. और आप उस force को mv square से equate करेंगे. You will get the first equation. और mvr is equal to nh by 2 pi. That is going to be my second equation. Okay, so लिख लीजिए.
Okay, should I move to the next part? Yeah, so this is the end of the atomic structure. We will start the next part, which is called as X-ray. The formula of X-ray will be similar to the Bohr's atomic model, but X-ray आप देखेंगे, we will be using not the single electron atom. Okay, वहाँ पे कुछ और होता है. तो हम लोग next चलते हैं X-ray. तो आप इसका yes. सर. Yes. सर वो रिकॉइल स्पीड में आपने हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम कैसे लिखा, वो नहीं समझा मुझे. वेट, मुझे देखना पड़ेगा. सॉरी. यस सर, ये EP/c ये कैसे लिखा. ऐसे देखो ना, जो फोटोन की मोमेंटम होगी वही तो इस हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम होगा, राइट? यस सर. Why? Because then only you can conserve the linear momentum, right? ओके सर. That ओके, is why. Okay. समझा. ओके, थैंक यू सर. Okay. I move to the second part. Next chapter, which is X-ray. आप SCV solve करेंगे तो X-ray आपको अलग chapter दिखेगा. Very simple होता है. Okay. Process कैसे होते हैं, बनाते कैसे हैं, right? उसमें से एक बड़ा सा ट्यूब लेते हैं हम लोग. इसके अंदर एक मेटेलिक ऐसे इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, राइट? और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एक मेटल ले लेते हैं और इन दोनों के बीच में एक बैटरी लगा लेते हैं. सपोज इसकी वोल्टेज V वोल्ट है और यहाँ पे हम लोग एक कॉइल, हीटिंग कॉइल लगा लेते हैं. ये हीटिंग कॉइल है. अब आप जानते हैं कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक वर्क फंक्शन से बंधे होते हैं, राइट? वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिल गई तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, राइट? एंड यू कैन गिव दैट एनर्जी in the form of photon also. The thing was called as a photoelectric effect. I can give that amount of energy with the heat also, right? So that electron will come out if amount of energy given by this heating coil is greater than work function. Okay, are you okay with this electron? And this effect, heating करने से जो electron बाहर आता है, this effect is called as a thermionic effect, which is not important for me. ये क्या कहलाता है? Ionic effect. मीन्स हीट देने से मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वहां पे. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्मियोनिक इफेक्ट. ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया. अब देखो यहाँ पे मैंने लोअर पोटेंशियल रखा है इस प्लेट पे, इसको हायर पोटेंशियल रखा है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली एक्सेलरेट करके इधर आएगा. सपोज यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है इस इलेक्ट्रॉन की. लेट इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 मान लेता हूँ, राइट? तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी -eV हो जाएगी, राइट? इलेक्ट्रॉन की. तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी वुड बी +eV. सो यहाँ पे आते आते मीन्स एनर्जी कंजर्व होगा. K plus U should be constant. So यहाँ पे K plus U 0 है तो यहाँ पे K plus U 0 होना चाहिए. तो if potential energy यहाँ पे -eV है तो obviously kinetic energy +eV होगा. अच्छा, कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझिए कि सपोज यहाँ की पोटेंशियल मैंने 0 वोल्ट लिख दी है तो यहाँ का V वोल्ट लिख दूंगा और पोटेंशियल एनर्जी को मैं QV लिख रहा हूँ. ओके, राइट, सिंपल. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब इस मेटल के पास आ रहा है, इट हैज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मैं V बहुत बड़ा ले लूंगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंटली लार्ज हो जाएगी. नाउ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू दिस थिंग, राइट? इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा और इसी के कारण यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस होता है. अब एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है वहां पे हम लोग देखेंगे, राइट? प्रोसेस को समझेंगे. बेसिक स्ट्रक्चर समझा? ये जो डायग्राम है इसको एक्सरे को जिसने खोजा था उसी के नाम पे इसका डायग्राम, इस सेटअप को नाम रखते हैं. दिस इज कॉल्ड एज Roentgen ट्यूब. Roentgen was the scientist who discovered this, and this experiment was done in 1895. Can you imagine? Just think over it. 1895 में लोग क्या कर रहे थे and what we were doing. हीटिंग कॉइल का देखो, हीटिंग कॉइल से ये हीट एनर्जी निकलेगी. हीट से रेडिएशन ही होता है ना. बेसिकली आप फोटोन ही दे रहे हो ना, यहाँ रेडिएशन वाला फोटोन दे रहे हो इस मेटल को, राइट?
So obviously metal is bonded by the metallic bond, right? आप उसको enough energy दोगे तो metallic bond को तोड़ के बाहर आ सकता है, right? So that energy is given by this heating coil. तो किसी भी मेटल को आप हीट करते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है. दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ थर्मियोनिक इफेक्ट. ओके, चलिए लिखिए इसको. ये तो सिंपल डायग्राम हो गया, बेसिक सेटअप हो गया. फिर हम लोग समझते हैं ऐसा क्या हो रहा है. हाँ ऑब्वियसली मैं भी बॉर्न नहीं हुआ था, अपने दादाजी भी बॉर्न नहीं हुए थे, टेंशन मत लो तुम. Okay, just write down. Okay. कुछ कहानी वाले बातें हैं. यहाँ जो मेटल लिया जाता है इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए. देखो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे हीट बीट का लॉस होगा, तो यहाँ इसकी जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए इस मेटल की, अदरवाइज ये मेल्ट कर सकता है. यहाँ पे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है. इस मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी लार्ज होनी चाहिए, ताकि ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके भी इसका जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो ज्यादा नहीं होगा, राइट. एंड इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी लार्ज होनी चाहिए, सो दैट मोस्ट ऑफ द हीट विल बी थ्रोन आउट ऑफ इट. ओके, कंडक्ट कर देगा आजू बाजू में. So all three properties should be there. Main aim क्या है, मेटल मेल्ट नहीं होना चाहिए, should not melt. इसको कहानी हुआ, आईटी में आपसे नहीं पूछा जाता, बस समझने के लिए है. देखोगे यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारे यहाँ पे मेटल्स यूज किए जा सकते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो. गोल्ड यूज किया जा सकता है, बहुत सारे एटम्स यूज किया जा सकते हैं. कॉपर भी यूज कर सकते हो. ओके, शुड आई मूव? हो गया, ठीक है. अब मैं वो जो एक्सरे प्रोड्यूस होने वाला है उसको मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ. पहले को मैं बोला कंटिन्यूअस एक्सरे और सेकेंड पार्ट को मैं बोलूंगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. ऐसा हो क्या रहा है समझिए. वो जो लास्ट में मेटल था उसका न्यूक्लियस होगा Ze, न्यूक्लियस में चार्ज होगी Ze, और इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है इससे पास होने वाला है. कुछ एनर्जी ऐसे पास होगी, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे पास होगा, राइट. अब जस्ट समझिए, isn't it this nucleus will apply force on electron? Nucleus of metal will apply force on electrons. Okay, force लगाएगा, isn't it, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेट होने लगेगा. So electrons will be accelerated. Right, accelerate होने लगेगा. और we know that accelerating charges radiates energy in the form of EM wave. We know that. ये मैक्सवेल का था. We know that. Sorry. We know that accelerating charges loses energy in the form of EM wave. और यहाँ पे ऐसे मेटल लिए जाते हैं जैसे ये जो EM वेव होता है उसको किस फॉर्म में आएंगे, एक्सरे के रेंज में आ जाते हैं. ठीक है, एक्सरे. आर यू ओके विद द कंटिन्यूअस एक्सरे बनता कैसे? अब सोचो, जो इलेक्ट्रॉन इससे बहुत दूर होगा उस पर फोर्स नेग्लिजिबल होगा, राइट. Electron which is very very far away from the nucleus, the force on that electron will be very very less. So we can say that उसकी एक्सेलरेशन बहुत कम होगी, या उसका जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो बहुत ही कम होगा, राइट. So
the electron which is far away from this nucleus will lose zero energy. Electrons which are very far away from the nucleus will lose negligible energy. राइट, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग. इसकी काइनेटिक एनर्जी थी प्लस ईवी. हो गया. ओके, सो आप देख सकते हैं कि हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन जो, अब यहाँ रेंज ऑफ एनर्जी की बात करें तो रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ एक्सरे सो मिनिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी लॉस ना करे, तो 0, राइट. तो इसके करस्पॉन्डिंग लेमडा क्या होगी, लेमडा मैक्स. लेमडा एनर्जी जब मिनिमम होती है तो लेमडा मैक्सिमम हो जाती है. लेमडा क्या होगा, टेंस टू इंफिनिटी. आर यू ओके विद दिस? ओके, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे वो पूरा का पूरा लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस ई. तो इससे इसके करस्पॉन्डिंग लेमडा होगी एक्सरे की, वो मिनिमम होगी. आप जानते हैं एनर्जी और लेमडा में क्या रिलेशनशिप होता है, जिसकी एनर्जी आप लिखोगे ई अपॉन, एक मिनट, आप ऐसे लिखते, सॉरी, Hc by lambda minimum is equal to EV, right? So I can write lambda minimum is equal to Hc by EV. Are you okay with this? समझ में आया? If you remember, Hc की वैल्यू मैंने कुछ भी लिखी हुई थी. Hc की वैल्यू क्या होती थी, 12,400, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम होती थी, राइट, अपॉन EV. E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, राइट. तो EV मैंने लिखने दिया, E को डिवाइड कर दो उधर से, ऊपर से, आप देखोगे लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको 12,400, ये वोल्ट हो जाता है ना, वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम अपॉन V.
ये लैम्डा मिनिमम हो गया, लैम्डा मैक्सिमम इन्फिनिटी हो गया। चल लिख लीजिए इसे। आई होप समझ में आया आपको। इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी लॉस कर देंगे, तो उससे जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एक्सरे की लैम्डा जो होगी, लैम्डा मिनिमम इतनी हो जाएगी। ये वोल्ट एंगस्ट्रम है, ये वी आप लिख दो जिस यूनिट में लिखना लिख। ओके, आगे बढ़े। सो मुझे जो भी ये कंटिन्यूअस एक्सरे होगा, ये इन्फिनिटी इस यहां से लेके यहां तक सारे आपको लैम्डा मिलेंगे, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस एक्सरे। ओके, आप उसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई। यहाँ पे मैं लिखूं कि जो कंटिन्यूअस एक्सरे का जो लैम्डा मिनिमम है, क्या ये मेटल्स पे डिपेंड कर रहा है, कैथोड एनोड पे? तो यू विल से नो, लैम्डा will not depend on metals of cathode और एनोड, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लैम्डा मिनिमम ओनली डिपेंड्स ऑन potential difference between cathode and anode। चलिए लिख लीजिए ये वाला पार्ट, इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। सेकंड इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये कैसे बनती है इसको समझो। सपोज ये न्यूक्लियस है, प्लस जेडी इसका चार्ज है, और इसके अलाउ क्रॉस डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हम लोग पार्टिकल की तरह लेते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। यहाँ पे जो भी मैं ऑर्बिट ले रहा हूँ, मतलब यूनि इलेक्ट्रॉन होने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। सपोज मैं 3 ऑर्बिट्स बना लेता हूँ, तो सारे ऑर्बिट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, राइट। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग n = 1 को k ऑर्बिट भी कहते हैं, राइट, k ऑर्बिट। सेकेंड n = 2 को l ऑर्बिट, राइट, और n = 3 को m ऑर्बिट भी कहते हैं, एक्सेट्रा, राइट। ऐसा। अब सोचो मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा था, राइट, याद है, हाई पोटेंशियल एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन, हाई काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस eV थी। अब ये इलेक्ट्रॉन आते आते हो सकता है ना किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकरा भी जाए, इससे कॉलिजन करेगा, और रैंडम कॉलिजन करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये नॉकआउट कर देता है, मतलब बाहर ले जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा, राइट। ये भी बाहर आ जाएंगे, ये भी बाहर आ जाएगा, और वो भी बाहर नॉकआउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, एक गैप बन जाएगी, राइट। यहाँ पे क्या बचेगा, एक होल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। व्हाट विल हैपन नाउ? तो ऑब्वियसली इसको बढ़ने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट ऑर्बिट का यहाँ जाए, हो सकता है उसके नेक्स्ट ऑर्बिट का आ जाए, राइट, कोई भी आ सकता है। सेवरल पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, इफ नेक्स्ट ऑर्बिट का यहाँ आके बढ़ता है, तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ पे कम हो जाएगी, इससे जो एक्सरे बनता है उससे हम लोग के अल्फा एक्सरे करेंगे। सपोज सेकेंड ऑर्बिट से यहाँ के बढ़ने को आता है,
उसके उससे जो एक्सरे, ऑब्वियसली यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, तो वहां से जो बनता है उसे के बीटा एक्सरे कहते हैं, राइट। और इसके ऊपर से होता है तो के गामा, अल्फा बीटा गामा ही डिफाइंड होता है, बाकी सब रहने दीजिए। समझ में आया क्या हुआ? वन इलेक्ट्रॉन विद द हायर काइनेटिक एनर्जी में कोलाइड विद द एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी से भी हो सकता है, राइट, जिससे भी हुआ, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट से हुआ तो इसकी नोमेनक्लेचर देखो के आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ उससे नोमेनक्लेचर में के आएगा। चलिए ये पहले लिख लीजिए डायग्राम, फिर मैं और समझाता हूँ। ओके, हो गया, आगे बढ़े। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट नाउ। तो मैं इसको अभी इतना बड़ा डायग्राम ना बना के कुछ और जैसा बना देता हूँ। चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सपोज ये n इज इक्वल टू 1 था, ये k ऑर्बिट कह सकते हो आप, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, एंड सो ऑन, राइट। इसको l ऑर्बिट बोलते हैं, m बोलते हैं, आगे अल्फाबेट लिखते चले जाओ। यहाँ पे सपोज वाइड हुआ था या होल बना था। अब देखो यहाँ से कौन कौन आ सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, इससे जो बनता है उसे के अल्फा बोलते हैं। यहाँ वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता था, इससे जो बनता आप उसे के बीटा बोलते हैं। इसके वाला भी यहाँ आ सकता था, इससे जो बनता उसे के गामा बोलते हैं, राइट। आर यू ओके विद दिस? इसमें देखोगे के अल्फा लाइन जो बनेगा वो सबसे ज्यादा बनेगा, मीन्स सबसे ज्यादा ट्रांजिशन किसका होगा, के अल्फा का होगा। नंबर ऑफ एक्सरे मुझे लिखना हो नाउ, के अल्फा का सबसे ज्यादा होगा, फिर के बीटा का होगा, और फिर के गामा, ठीक है। लेकिन एनर्जी लिखना हो, एनर्जी ऑफ एक्सरे लिखना हो, तो आप जानते हो के अल्फा का सबसे कम होगा इन तीनों में एनर्जी, के बीटा का उससे ज्यादा होगा, और के गामा का सबसे ज्यादा होगा एनर्जी, राइट। सिमिलरली सपोज, हाँ, बिकॉज देखो पोटेंशियल एनर्जी जो ये नेचर का रूल होता है, नेचर का रूल है, या हर एक जगह आप ऑब्जर्व करते होंगे कि जो तुरंत उसको फिल कर दे, तुरंत उसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, दैट हैपेंस मोर, राइट। एनीवेयर इट हैपेंस। सो अब मान लो यहाँ पे वॉइड बन जाता, यहाँ पे होल बनता, तो नीचे वाला ऊपर तो जा नहीं सकता, क्या हो सकता है, ये वाला आता, इसे मैं एल अल्फा लाइन बोलता, यहाँ आता ये वाला आता, तो इससे जो एक्सरे बनता वो एल बीटा बोलता। मान लो एक और ऊपर बना लेते हैं, एल एन इज इक्वल टू 5। इफ वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता तो उससे जो एक्सरे बाहर आता उससे एल गामा बोलता। यहाँ पे भी आपको बोला जाए, नंबर ऑफ एक्सरे बोला जाए तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे एल अल्फा की सबसे ज्यादा होगी एल बीटा से, एल गामा से। लेकिन एनर्जी ऑफ एक्सरे आप देखेंगे, एक्सरे, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए इतना लिख लीजिए। आई होप एल, ये नोमेनक्लेचर तो एटलीस्ट समझ में आया, अल्फा बीटा का।
हो गया? ना वन मोर थिंग, जो एक्सरे है उसकी आपको लेमडा निकालनी हो तो वेरी सिंपल, 1 by लेमडा ऑफ सपोज के अल्फा लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे, आर जेड स्क्वायर लिखते थे, यहाँ पे सिर्फ मैं जेड इफेक्टिव स्क्वायर लिखूंगा, 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, मीन्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 by 2 का स्क्वायर। आर यू ओके विद दिस? ठीक है। यहाँ पे पूछा जाएगा ये जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो जेड इफेक्टिव ये टर्म आपने क्वालिटेटिवली केमिस्ट्री में यूज किया हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग एक्सेट्रा। जेड इफेक्टिव इज एक्चुअली जेड माइनस सिग्मा। जेड आप जानते हैं क्या होती है, जेड इज एटॉमिक नंबर एंड सिग्मा इज कॉल्ड एज ए स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट। For k lines मीन्स ट्रांजिशन सम 1 to 1 होगा, तो आप कहेंगे इसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू 1 होती है, बस के लिए पूछा जाता है, मैं एल का लिख देता हूँ, लाइन्स मीन्स n समवेयर से 2 आएगा तो सिग्मा 7.4 होती है, बट फॉर यू दिस इज इंपॉर्टेंट और यह याद रखना आपको। तो यहाँ पे याद कीजिए 1 by लेमडा की वैल्यू हम लोग आर जेड स्क्वायर लिखते थे, बस यहाँ पे जेड इफेक्टिव लिख दिया, दैट्स इट। और जहां से ट्रांजिशन हो रही है वहां लिख दिए, जैसे मैं 1 by k बीटा बोलता, अब तो आप बता सकते हैं आर जेड इफेक्टिव की जगह क्या लिखेंगे, जेड माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by 3 का स्क्वायर, राइट, सिंपल। हाँ सिग्मा 7.4 होता है, but you don't need to remember this 7.4. They usually ask you about the k lines. Similarly 1 by lambda k gamma पूछा जाता तो आप लिखते r z minus 1 का स्क्वायर इंटू 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by 4 का स्क्वायर, right? Do you understand that if you are knowing, if you are getting the different x-ray और उसकी lambda आप measurement कर रहे हो, right? तो इनडायरेक्टली आप उसका z भी बता सकते हो उस एटम का, जिस एटम से आप ये एक्सरे का प्रोसेस कर रहे हो, ओके। एंड बेसिकली दिस वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एटम्स, ओके। चलिए लिख लीजिए ये सब जो भी लिखा हुआ है। नहीं वो सिग्मा है, जेड माइनस सिग्मा लिखना था, राइट। सिग्मा किसी भी के लाइंस के लिए 1 ही होती है, ओके। इट डिपेंड्स ऑन के लाइन, चाहे अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो, आप 1 लिखेंगे। आगे बढ़े।
इस तरह से आप लेमडा एमडा निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक का। अभी जो मैंने बोला था उसको मैं लिखता हूँ, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोसलेस लॉ। वो सेम एक्सरे के एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने बोला था रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे will be equal to a into z minus b, where a and b are going to be constants. Frequency of X-ray, where f is frequency of characteristic X-ray. Characteristic X-rays. For example, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो के अल्फा की बात करें, के अल्फा लाइन की बात करें। अब 1 by lambda of k alpha लिखते, क्या लिखते, r minus z minus 1 into 1 by 1 का स्क्वायर minus 1 by 2 का स्क्वायर, राइट। सो इसको मैं सॉल्व करता, r z minus 1 into 3 by 4, right? If you remember, can I write frequency of k alpha line is c upon lambda of k alpha line, right? मैं c से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो ये हो जाते 3r c by 4 z minus 1, राइट। सो आपसे पूछा जाता फॉर के अल्फा लाइन, व्हाट इज ए, तो आप ए की वैल्यू क्या लिखते, 3rc/4, and what is the b is 1, okay। actually b was the screening constant always, लिख लीजिए, सिंपल है, and this can be used to identify the different z, हाँ सॉरी z, okay sorry स्क्वायर होता है ना, सॉरी। तो मुझे रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, इसको ठीक कर लेता हूँ। आपको रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए ना उसके इक्वेट में, सॉरी। तो मैं रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन लिखता, तो आप कहते रूट 3rc/4 z minus 1, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं सर ए की वैल्यू जो होगी रूट 3rc/4 होगी, बी की वैल्यू 1। तो ये मोस्टली ने जब ग्राफ बनाया होगा रूट एफ एंड जेड का ग्राफ, तो आप जानते हो ये कैसा बनता, कुछ ऐसा बना था, ऐसा बनता था ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनता था ऐसा। डन। एक और टर्म होता है, बेसिक है, एक्सरे एब्जॉर्प्शन। किसी भी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है जब किसी भी मटेरियल से आप एंटर कराएंगे तो इसमें एब्जॉर्प्शन होगा। सपोज यहाँ पे किसी मटेरियल में घुस रहा है, वहां पे इंटेंसिटी में लिख रहा हूँ, इट इज एंटरिंग, तो देन इंटेंसिटी इज I0। यहाँ से x चल लिया है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है मैंने लिखा इंटेंसिटी इज I। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? तो यू विल सी दैट I इज इक्वल टू I0 e⁻⁻ -mx। I0 तो आपको समझ में, m इज सम कांस्टेंट, m इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। लिख लीजिए। Okay, should I move to the graphs now? Graphs. मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे
Okay, no problem. Okay, we'll do the graph next time. Okay, no problem. I hope समझ में आ रहा है आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर या एक्सरे ये सब, right? And you start doing the module. Okay, module and SCB आप कर सकते हो. You can solve the module and X-ray and SCB both. हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं बाद में करेंगे, तो कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है. Don't, no problem. चलो हो गया. ओके, चलो नेक्स्ट डे पढ़ते हैं. मॉडर्न के बाद जेईई मेंस के सिलेबस होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको. मॉडर्न खत्म होगा, देन आई विल बी टीचिंग द जेईई मेंस सिलेबस. लाइक वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन डायफ्रैक्शन होता है, ईएम वेव होता है, एक्सेट्रा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई मेंस सिलेबस, बट दैट वोंट बी कमिंग इनटू दैट एडवांस सिलेबस. चलो ओके, नेक्स्ट डे पढ़ते हैं. बाय.